we're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए लुक में दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अलग ही लुक था। बढ़ी हुई दाढ़ी थी, फिलासफर का लुक था, और खुद उन्होंने वो वाकया बताया था कि माँ सोनिया कैसे उन्हें पगड़ी में नहीं पहचान पाई थी। इसके बाद वो संसद में नजर आए थे, तब भी उनके लुक को लेकर के चर्चा हुई थी, उनके आक्रामक भाषण को भी लेकर के चर्चा हुई। और अब वो पहुंच गए हैं लंदन स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी पर उन्हें लेक्चर देना था। लेक्चर देते देते वो भारत पे आए और ऐसी कुछ बात कह गए जिसको लेकर के हो गया है हंगामा। 28 फरवरी को उन्होंने ये लेक्चर दिया है और सैम पित्रोदा ने उनके इस लेक्चर को 1 घंटे के आसपास का है अपने YouTube पे अपलोड किया है। उसके सेलेक्टेड अंश को हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. That sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about 3 policies that you agree with, I think misses the point. Self had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. Here you can see that picture. That picture is taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending
the democratic structure and the democratic system on the planet. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. And as I'm entering Kashmir, the security guys come to me and say, listen, we need to talk to you. So what do you need to say? And they say, well, look, the thing is, you can't walk in Kashmir, right? It's not a good idea. We're walking 3 days, and we're walking 3 days in the roughest districts. So you can't walk in Kashmir. It's a bad idea. So I'm like, why can't I walk in Kashmir? And they're like, well, because you'll get hand grenades thrown on you. And so I go and have a little word with them and say, look, they're telling us they're going to get hand grenades thrown at us. And they're like, okay. So they're like, yeah, we should all walk. And so we decided we're going to walk. And then the really interesting thing happens. So we've been told we're going to be killed. We're walking. And people are coming. And then one guy looks at me and he says, call me. So I'm like, come. And then he says, you see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like, the militants. And they're looking at you. So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back. And then we carry on, nothing happens. So that to me was an indicator of the power of listening and non-violence. अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया है, कैम्ब्रिज में बोल रहे थे, स्वाभाविक सी बात है, लुक भी वैसा ही है। पूछा गया था उनसे, जो स्टूडेंट्स थे, MBA के भी थे, बिजनेस से रिलेटेड थे, उनसे पूछा था नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के। तो उन्होंने कुछ योजनाएं गिनाई, जैसे कि बैंक अकाउंट्स खुलवाना, उज्ज्वला योजना, 1-2 योजनाएं गिनवाई, लेकिन कहे कि इन सेलेक्टेड योजनाओं की वजह से वो उनका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा है भारत का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, उसका क्षरण हो रहा है, और इसके लिए उन्होंने जम के आलोचना की। फिर उन्होंने एक वाकया बताया है किस तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी जासूसी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जो खुफिया अधिकारी हैं, उन्होंने उन्हें अलर्ट किया था कि फ़ोन पे आप संभल के बात किया कीजिए, क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं, इंक्लूडिंग मीडिया एंड न्यायपालिका, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है और सरकार आपको सुन रही है। ये बात कह करके उन्होंने नया विवाद छेड़ दिया है। अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, जहां कहीं भी जाते हैं वो मोदी सरकार पर हमला करना नहीं चूकते, जिसको लेकर के बीजेपी बार बार सवाल उठाती रही है कि विदेशी धरती पे जा करके देश की आलोचना करना। पीएम मोदी के आप आलोचक हो सकते हैं, विपक्ष में हैं, आप आलोचना कीजिए, लेकिन वहां पे जा करके लोकतंत्र पे हमला करना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किया जा रहा है, ये किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए, और सुनिए उन्होंने क्या कहा। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर, उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं कर? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये आदत सी बन गई है विदेशी धरती पे जाकर के अपने देश की आलोचना करना, और वो तंज में ये भी कहते हैं कि और किसी के नहीं सुनते, कम से कम इटली के पीएम की ही सुन लेते। इटली की पीएम अभी भारत में थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है, वो सबके चहेते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी का ताल्लुक इटली से है, ननिहाल राहुल गांधी का इटली में है, इसलिए अनुराग ठाकुर ने ये तंज कसा है।
तो अब राहुल गांधी के इस लेक्चर की काफ़ी चर्चा हो रही है, इस पे हंगामा मचा हुआ है। और अनुराग ठाकुर ये भी कहते हैं कि अभी तो पूर्वोत्तर का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को ही देख लेते तो कुछ सबक मिल जाता, या जो भी चुनाव हो रहे हैं गुजरात से लेकर के हिमाचल तक, उसके भी नतीजे देख लेते तो भी कुछ पता चल जाता कि आप कहाँ पे खड़े हैं। बेशक हिमाचल में कांग्रेस जीती है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने उन्हें घेरने की कोशिश की कि बीजेपी के इस जीत को राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो भारत में बोल रहे हैं कि विदेश में बोल रहे हैं, और बोलना चाहिए तो कहाँ तक बोलना चाहिए, कार्य एवं व्यवहार की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, ये कहीं कहीं राहुल गांधी उसे लांघ जाते हैं, जिसको लेकर के उनकी आलोचना होती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।